Good morning everyone and welcome to the class. Presently we are doing the revision of the second chapter, the end of bipolarity in contemporary world politics. And under this chapter we have discussed the causes of disintegration of USSR in the previous class. And the discussion was over regarding the causes, and now today I'm going to write down the causes. Okay, just it will be in points, and when you prepare the answer you will have to elaborate each and every point. Okay, so causes of disintegration of USSR. Okay, so the first cause is internal weakness of Soviet internal weaknesses of Soviet economic institutions. We have discussed these weaknesses, there was complete ownership of the state over the resources of the country, abolishment of private property, then the economy was closed, and all these led to the weaknesses. And because of these weaknesses what happened that इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गई थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन of many years. Because of weaknesses, all the points are related to each other, and when you understand this connectivity between the 2 points, then it will be very easy to memorize the points. Logically the another point will come after the first point. तो अगर तुम लॉजिकल वे में हम समझते हैं चीज़ों को तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू मेमोराइज द पॉइंट्स. मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. लॉजिकली तुम एक के पॉइंट दूसरे एक पॉइंट के बाद दूसरी पॉइंट अपने आप आती जाएगी. तो दैट इज़ द रीज़न वी नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, तो जो इंटरनल वीकनेसेस थे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में, उस वीकनेस के कारण स्टैग्नेशन आ रही थी, एंड देयर वाज सम अदर रीजंस फॉर also for this economic stagnation, and that was a huge economic burden. Huge economic burden on USSR. And now what were the burden? कौन सा इकोनॉमिक बर्डन था यूएसएसआर के ऊपर? वी हैव डिस्कस्ड दिस ऑल्सो. देयर वर 2 main economic burden on USSR. The first was to it has to equate its military and nuclear arsenal with the USA, and the second was it has to give financial aid to the countries of Eastern Europe, which were in the Soviet bloc, and the Central Asian republics, which were the part of USSR. Okay, so these three are all are interrelated. And now the fourth point is regarding the stagnant political system.
Now the question is कि what was the reason for stagnation in political system? Political system में क्यों stagnation आ रहा था? The reason was the single party system. In USSR, the Communist Party was the only party which was there constitutionally and legally. No other party can be there. तो ये जो single party system था, that party system caused unaccountable government. बिकॉज गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती है अगर उसके अंदर फियर ना हो कि वो नेक्स्ट इलेक्शन होने जा रहा है और सिलेक्शन में वो इलेक्शन को लूज़ कर सकता है. तो दैट फियर वॉज नॉट देयर बिकॉज ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम एंड दिस लेड टू द अनअकाउंटेबिलिटी of the government and this led to the stagnation in political system. ग्रोथ जो पॉलिटिकल सिस्टम का होता है वो ग्रोथ रुक गया था बिकॉज उनको किसी तरह का लोगों के पीपल्स एस्पिरेशंस पीपल्स डिमांड से उन्हें कोई मतलब नहीं था. दे वर नॉट रेडी टू करेक्ट द मिस्टेक्स डन बाय द पॉलिटिकल सिस्टम. तो ये चीज़ें जो हो रही थी ये स्टैग्नेशन ला रहा था पॉलिटिकल सिस्टम में. Not only political system, but the administration was also stagnant. And that is your next point. Stagnant administrative system was also stagnant. And what was the reason of this stagnation in administration? The reason was all this political stagnation and administrative stagnation both are connected. क्योंकि पॉलिटिक्स पे जो कंट्रोल था दैट वाज ओनली ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम. तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का होल्ड था उसको एक्चुअली जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, दैट इज़ ब्यूरोक्रेसी. एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस ऑल्सो कि किस तरह से यूएसएसआर में जो ब्यूरोक्रेट्स थे दे बिकम द मोस्ट पावरफुल क्लास इन द सोसाइटी एंड दिस पावर स्टार्टेड टू बी मिसयूज्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स. करप्शन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो गया था. एंड व्हाट वी सी कि जिस पर्पस से यूएसएसआर बना था फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी, फॉर द पर्पस ऑफ इगैलिटेरियन सोसाइटी, वो पर्पस डिफीट हो रहा था क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का जो एक क्लास हो गया था दैट क्लास वाज द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल क्लास एंड दिस क्लास वाज मिसयूजिंग इट्स पावर. करप्शन वाज वेरी हाई इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्टैग्नेशन आ गया था. वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, वो रुक गए थे. द होल सिस्टम वाज स्टैग्नेंट. एक जगह पे आकर के वो रुक गए जहाँ से उनका आगे की तरफ जो ग्रोथ होना चाहिए था दैट ग्रोथ वाज नॉट हैपनिंग एंड दिस वाज द रीज़न. इसके कारण लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया. तो दीज आर 5 causes. Other than these 5 causes, some other causes are there. Okay, now we will discuss. I am going to write down the 6th cause of the disintegration of USSR. Sixth cause is failed to meet the aspirations of the people. So this reason is was there. क्यों लोगों के एस्पिरेशंस नहीं फुलफिल हो पा रहे थे? व्हाट वाज द रीज़न फॉर नॉट फुलफिलिंग
the aspirations of the people, why the system failed to fulfill the aspirations of the people, because of the problems which we have discussed. इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम था, स्टैग्नेशन आ रहा था, इतना बर्डन था, ग्रोथ जितना होना चाहिए था वो बिल्कुल ही ग्रोथ रुक चुका था, स्टैग्नेंसी आ गई थी, इकोनॉमिक सिस्टम की इतनी सारी वीकनेसेस थी, देन पॉलिटिकल सिस्टम में जो सिंगल पार्टी सिस्टम था, तो ऑल दिस led to the dissatisfaction among the people. And now what people started to do, they started to compare their condition, their economic condition, their political condition with the condition of the Western countries. And when they started to compare, they found that they were behind the Western countries. And it was like a deceit. वो अपने आप को deceived feel कर रहे थे कि हमारे साथ धोखा हुआ, जो हमारा सिस्टम था उस सिस्टम ने जो हमें प्रॉमिस किया था वो चीज़ें हमें नहीं मिली, फ्रीडम वॉज नॉट देयर, एंड फ्रीडम वॉज curtailed बिकॉज द सिस्टम वांटेड टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी. बट व्हाट दे वर फाइंडिंग कि इक्वालिटी भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई, और फ्रीडम भी चली गई, एंड वी आर lagging behind the Western countries in terms of economic advancement, in terms of technological advancement, in terms of freedom of the people. जो freedom Western countries में people enjoy कर रहे थे, that freedom was not being enjoyed by the people of the USSR. तो ये चीज़ें जो थी वो लोगों के अंदर, एक लोगों के लिए बहुत बड़ा, ये जिसको हम कह सकते हैं झटका था. It was a psychological shock, it was a political shock for the people. जो उन्होंने अपना वो they were with the system in the previous years, उन्होंने अपना पूरा सपोर्ट दिया सिस्टम को, बट they did not get what they deserved. And now there was a stagnation in the economic system as well as political system as well as administrative system. So now they were not in the condition of identifying themselves with the system. अब वो उस सिस्टम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे. तो लोगों का सपोर्ट का कम होना, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, बिकॉज इट लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म. बट दिस इज योर 6th पॉइंट. 8th पॉइंट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म. इसके बीच में एक नया पॉइंट आता है, दैट इज रिफॉर्म्स ऑफ द गोर्बाचेव. एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि ये स्टैग्नेशन आ गया था, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज स्टैग्नेंसी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था. पीपल वर नॉट आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द सिस्टम. ये सारे प्रॉब्लम्स थे 1985 तक की प्रॉब्लम्स. काफ़ी ज़्यादा मतलब लार्ज स्केल पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था इन USSR. एंड देन in 1985 Gorbachev became the general secretary of Communist Party, and then he started some reforms, economic reforms, political reforms. और जो उन reforms उन्होंने लाया, we have discussed all these things, but you must understand कि Gorbachev, the motive of Gorbachev to bring reforms was to make USSR strong. उन्होंने रिफॉर्म्स इसलिए नहीं लाया था कि वो USSR को डिसइंटीग्रेट करना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू मेक USSR स्ट्रॉन्गर. जो कंडीशन उस समय प्रिवेल कर रही थी इन 1985, उसमें उन्होंने जो डायग्नोसिस उन्होंने किया कि क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है हमारी कंट्री में, क्यों हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, क्यों पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैग्नेंट हो गया है, उन्होंने डायग्नोसिस बिल्कुल सही किया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने रिफॉर्म्स किए. But these reforms actually paved the way for the disintegration of the country. क्योंकि जो लोगों का जो डिससेटिस्फैक्शन का लेवल था वो इतना ज़्यादा हो चुका था, उसमें इन्होंने जो रिफॉर्म्स स्टार्ट किया, वो रिफॉर्म्स क्या था? These reforms were directed towards liberalization.
these reforms were directed towards we can say democratization, because he started मल्टी पार्टी सिस्टम, जो 72 ईयर्स का लॉन्ग हिस्ट्री था यूएसएसआर का, कि जिसमें कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस था, उसको उन्होंने एंड करके मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट किया. तो दीज रिफॉर्म्स वे डायरेक्टेड टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन. तो इसको कहा जाता है कि एक चीज़ काफ़ी दबा के रखा गया था यूएसएसआर में, लोगों के एस्पिरेशंस को सप्रेस करके रखा गया था. बट इन्होंने जो रिफॉर्म्स की स्टार्टिंग की, उस रिफॉर्म्स के कारण वो जो एस्पिरेशंस, जो डिमांड्स लोगों के दबे हुए थे, वो बाहर आ गए. और ऐसा कई बार ऐसा भी कहा जाता है, वी कांट से एनीथिंग कि ऐसा ही होता, बट ऐसा कहा जाता है कि अगर ये रिफॉर्म्स नहीं आते तो शायद जिस लेवल का वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों के अंदर और लोग बिल्कुल रिवोल्ट कर गए, वो नहीं होता. बट ये बात भी सही नहीं है, इस पर कॉन्ट्रोवर्सी है एंड वी कांट नो कि क्या होता अगर ऐसा नहीं होता तो. बट जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि दीज रिफॉर्म्स ऑफ गोरबाचेव बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. And then our eighth point is the rise of nationalism. Rise of nationalism. And moreover, besides this rise of nationalism, there was a desire of sovereignty also. The rise of nationalism and desire of sovereignty in republics of USSR. Here also we can say that all these 3 points are connected to each other, because the system failed to meet the aspirations of the people. There was dissatisfaction among the people, and this dissatisfaction was one of the reason for the rising of this feeling of nationalism and a desire of sovereignty among the people. Though we can't say कि ये जो गोरबाचेव के रिफॉर्म्स थे, they were responsible for this feeling of nationalism. ऐसी बात नहीं है कि गोरबाचेव ने रिफॉर्म्स किया उसी कारण लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई. नेशनलिज्म की फीलिंग was there from the very beginning. ऐसी बात नहीं है कि गोरबाचेव के कारण ही everything was happened. चूँकि लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग पहले से थी. इट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, जो कि पहले अभी मैंने रिफॉर्म्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो भी कहा, एंड नाउ अगेन द सेम पॉइंट इज़ देयर, कंट्रोवर्सी इज़ देयर कि क्या रिफॉर्म्स के कारण ही लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई. नो, इट वाज नॉट लाइक दैट. रिफॉर्म्स आए, उसके कारण उसने उसके इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, यू कैन से दैट, बट दैट वाज देयर. फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, डिज़ायर ऑफ सॉवरेनिटी वो पहले से था, बट उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स. क्योंकि एक लोगों को स्वाद लगा किसका, डेमोक्रेसी का, लिबरलाइजेशन का, एंड दे वर कंपेयरिंग देयर सिचुएशन विद द वेस्ट. तो अब वो रुकने वाले नहीं थे. हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर गोरबाचेव ने रिफॉर्म्स नहीं लाया होता तो ये और दिनों तक शायद चल जाता. 91 में जो हुआ वो शायद कुछ साल बाद होता, बट होता तो ज़रूर. सो इसमें एक और चीज़ है, एक तो ये कि देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी कि नेशनलिज्म की फीलिंग पहले से थी, गोरबाचेव के कारण क्या हुआ. देन वन मोर थिंग अबाउट विच वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो थे उनका कल्चर बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर था.
अदर रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर को अगर हम देखें और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उनके कल्चर को देखें, तो कल्चर ऑफ दीज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स वर कम्प्लीटली डिफरेंट एंड यूनिक. तो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द पीपल आउटसाइड यूएसएसआर, ऐसा फील किया जाता था, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता था कि वेन एवर वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग अगर आती है कभी भी, तो वो सबसे पहले इसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आएगी, क्योंकि उनका कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है और वहाँ पर रशियन कल्चर को इम्पोज किया जाता है. बिकॉज वी हैव सीन डोमिनेंस ऑफ रशिया वॉज देयर इन द ऑल द रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर. एवरीवन वाज सपोज टू बी एट इक्वल स्टेटस, लेकिन ये इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया था यूएसएसआर में. रसिया का डोमिनेंस था, एंड दिस डोमिनेंस वाज नॉट ओनली इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ लाइफ बट ऑल्सो इन कल्चरल स्फेयर ऑफ लाइफ. तो ये जो कल्चरल स्फेयर ऑफ लाइफ में जो डोमिनेंस रसिया का देख रहे थे, इसके कारण ऐसा समझा जाता था कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ जो हैं दे विल बी फिल्ड विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और वहाँ से आज़ादी की बात आएगी. बट हुआ क्या, इसका बिल्कुल उल्टा हुआ. जो एक्चुअल हुआ दैट वाज कम्प्लीटली अपोजिट टू दिस व्यू, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्री, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ऑफ यूएसएसआर जो थे, दे वांटेड टू बी विद द यूएसएसआर. इवन जबकि यूएसएसआर बिखरने लगा, एट दैट टाइम ऑल्सो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि उन्हें यूएसएसआर के साथ ही रहना है. क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर थी. एंड जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई यूएसएसआर में, जिन रिपब्लिक्स में आई, वो रिपब्लिक्स वो थे जो कि ज़्यादा यूरोपनाइज्ड थे, यूरोप के तरफ जो थे, यूरोपियन आइडियाज़ से जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. एंड रसिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आई. तो इसके पीछे जो रीज़न माना जाता है वो ये रीज़न है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को छोड़ के बाकी जो रिपब्लिक्स यूएसएसआर के थे, उनके अंदर ये डिससेटिस्फैक्शन था कि जो कंट्री का रिसोर्स है, वो रिसोर्स का एक मेजर पार्ट जो है वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के डेवलपमेंट की तरफ. तो ये एक तरह का बर्डन था उनके लिए. जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, दे वर लाइक फाइनेंशियल बर्डन ऑन द डेवलप्ड रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर. यूएसएसआर के जो डेवलप्ड रिपब्लिक्स थे, उन पर वो एक तरह से बर्डन प्रूफ हो रहे थे. And they wanted to get rid of this burden, and that also became one of the reasons for the rise of nationalism and desire of sovereignty among these republics, the republics which were developed like Russia, Ukraine, Belarus. Okay, so all these 8 are your main causes of disintegration of USSR. Okay. And now we are moving to a new subtopic, and that is consequences of disintegration of USSR. Okay, so now we will discuss the consequences. So we see that the second world, that was the communist world, has had collapsed in 1991, and this collapse or disintegration of the second world was had a major impact on the world politics, and the most important impact was the end of the Cold War. Cold War, which was the most important feature of world politics since the end of Second World War, since 1945. It was a regular feature of the world politics. And we have discussed in the previous chapter how there was rivalry between these two superpowers, how they wanted to increase their influence, how they wanted to
prove the supremacy of their ideology. दोनों जो ग्रुप थे, जो यूएस ब्लॉक एंड यूएसएसआर ब्लॉक, बोथ ऑफ देम वांटेड टू प्रूव कि जो उनकी आइडियोलॉजी है दैट इज़ द बेस्ट आइडियोलॉजी इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ. तो ये जो अपनी आइडियोलॉजी को बेस्ट प्रूव करने की जो लड़ाई थी, दैट वॉर केम टू एन एंड विद द एंड ऑफ द यूएसएसआर, क्योंकि अब तो वो आइडियोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी. And this proved, the end of USSR proved that there is supremacy of the communist, the capitalist and liberal ideology. क्योंकि जिस तरह की लड़ाई थी आइडियोलॉजी की, उसमें अगर एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्री ही कोलैप्स कर जा रही है, देन एक जो सुपर पावर थी वो कोलैप्स कर जा रही है. तो ये अपने आप प्रूफ हो गया कि इस जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें अगर सुप्रीमेसी किसी की थी, अगर ज़्यादा हम कहेंगे कि जो ज़्यादा सही आइडियोलॉजी थी, दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ यूएस, दैट वाज द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी एंड लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी. So now it was proved that that ideology was superior, and the Cold War ended between because सुपर पावर अब रहा ही नहीं. अब यूएसएसआर ख़त्म हो चुका था, तो यूएसएसआर के ख़त्म होने के साथ ही जब दो सुपर पावर होते तभी कोल्ड वॉर पॉसिबल था. तो जब दो सुपर पावर ही न रहे तो कोल्ड वॉर जो है वो अपने आप एंड हो गया. एंड नाउ इट वॉज होप्ड कि when Cold War has ended, then there will be peace in the world, because Cold War was a constant threat to the world peace, because there was a situation of war always. The situation of war was existing all the time during the Cold War era. तो जब एंड हो रहा है यूएसएसआर का, उसके साथ साथ कोल्ड वॉर का एंड हो रहा है, तो it was hoped कि now there will be world peace and security. And now we will switch to another impact, and the impact is we see that the power relation changed completely in world politics. And with this, two possibilities were there. After the end of USSR, there were two possibilities. The first possibility was कि the remaining superpower, that is the US. The US will dominate and it will create a unipolar system. जो bipolar system था वो end हो गया. तो अब इस दो possibility आ रही है. The first is कि this bipolar will convert to unipolar. जो अभी तक जहाँ पर दो super powers थे उसकी जगह पे अब एक super power होगा. ओके. एंड द सेकेंड पॉसिबिलिटी ये थी कि इंस्टेड ऑफ यूनिपोलैरिटी, जो बाईपोलर से हम यूनिपोलर की तरफ जा रहे हैं, हो सकता है ये भी कि इस बाईपोलर से हम मल्टीपोलर की तरफ चले जाएं. तो व्हाट इज हैपनिंग, द वर्ल्ड वाज बाईपोलर टिल 1991. नाउ आफ्टर 1991 व्हेन द यूएसएसआर disintegrated, two possibilities हो रहे हैं. एक तो हम बाईपोलर जो है that bipolar may convert to unipolar. In this unipolar world there will be dominance of US. And the second possibility ये भी हो रही है कि ये जो bipolarity है ये खत्म हो गई है, तो now this can also move towards multipolar. Multipolar means there are many centers of power. There is not one or two centers of power, but instead there are many centers of power. This is called multipolar world, and we will discuss this consequence of the end of USSR in detail, because your third chapter, that is US hegemony in world politics, has been deleted, and now a portion of that chapter has been included in this chapter only, the second chapter.
तो सेकेंड चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, द कॉजेज has also been discussed, and now the consequences. तो consequences में one of the most important consequence is the dominance of USA. So we will discuss this dominance of USA, how it happened and what does it mean. All these things will be discussed in the next class.